السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں، سوالات آج بھی آپ لوگوں کے ہماری نظروں کے سامنے ہیں۔ انشاءاللہ چند سوالوں کے جوابات دے دیں گے، اور جو لوگ باقی ہیں وہ انتظار کرتے رہیں، فیوچر کی کسی بھی مجلس کے اندر ان کے سوالوں کے جوابات ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر دیے جائیں گے۔ سب سے پہلا جو کمنٹ پیش کرتے ہیں طیب جی کا ہے۔ سلام پیش کرتے ہیں طیب صاحب، وعلیکم السلام۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر نماز میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت اتحیات میں یا پھر رکوع میں یا پھر سجدے کی تسبیح میں اگر مخارج صحیح سے ادا نہ کیے جائیں، صحیح ہم نے یعنی اتحیات، درود شریف، دعا معصورہ یا پھر سبحان اللہ، الحمدللہ یا سبحان ربی العظیم، جو بھی چیزیں پڑھی جاتی ہیں ان تمام چیزوں کو پڑھا، لیکن مخارج کی اس میں رعایت نہیں کی ہے اور اس میں غلطی ہو گئی ہے، مخارج کی غلطی ہو گئی، جن میں سے کوئی میننگ چینج وغیرہ تو نہیں ہوئے ہیں، نماز ہوگی یا نہیں؟ دیکھیے طیب بھائی، نماز میں ایسی غلطی ہو جانا جس کو ہم فحش غلطی کہتے ہیں، اتنی بڑی غلطی جس کی وجہ سے عقیدے کی تبدیلی واجب آ جاتی ہے، کفر لازم آ جاتا ہے، تو ایسی فحش غلطی کی وجہ سے ہی آپ کی نماز فاسد ہوگی۔ اس کے علاوہ جیسے مخارج کی غلطی ہوگی یا پھر جو پروننسیشن ہے، ادائیگی کی تھوڑی بہت غلطی ہو گئی ہے، جس میں سے نماز کی جو معانی ہے، معانی وغیرہ کے اندر کوئی بڑی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، تو ایسی صورت کے اندر آپ کی نماز میں کوئی بھی چیز توڑتی نہیں ہے، آپ کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ دوسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ اپنی انفرادی نماز پڑھتے وقت اگر کسی ورڈ کو نماز کے بار بار پڑھ لیا جائے سجدے میں یا پھر سجدے میں، رکوع میں جو تسبیحات ہوتی ہے یا پھر کوئی ورڈ ہوتا ہے جن کو بار بار پڑھا جائے، تو بار بار پڑھنے کی وجہ سے آپ کی نماز فاسد نہیں ہوگی، لیکن جو چیزیں ہیں جیسے کہ مثال کے طور پر قاعدہ اولیٰ میں بقدر تشہد بیٹھنا واجب ہے۔ اب یہاں پر 2 مرتبہ 3 مرتبہ آپ تشہد پڑھ لیتے تو ظاہر سی بات ہے یہاں پر تکرار کی وجہ سے آپ پر سجدہ سہو لازم ہوگا۔ تیسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے وقت مقتدی سے رکوع یا پھر سجدے کی تسبیح میں غلطی ہو گئی ہے، تو مقتدی کو مقتدی جب امام کے تابع ہے تو پھر امام کے تابع ہی ہے، جب امام سجدہ سہو کرے گا تو آپ کرو گے، آپ کی کوئی ذاتی غلطی کی وجہ سے آپ پر سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا۔ سمرین بانو نے سلام پیش کیا ہے، وعلیکم السلام۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ گدا اور صوفہ، گدے اور صوفے 2 ایسی چیزیں ہوتی ہے جن کو نماز کے لیے ہم یوز نہیں کرتے ہیں، نماز ہم کو اس پر پڑھنی بھی نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر وہاں پر کوئی یورین یا پھر کوئی نجاست یا ناپاکی لگ جائے، ناپاکی وغیرہ لگنے کے بعد ہم نے صرف ان کے اوپر چادر وغیرہ بچھا دی تاکہ بیٹھے تو بیٹھنے کے بعد بیٹھنے والے کے کپڑے وغیرہ گندے نہ ہو، تو کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ ہم ناپاکی کو ختم نہ کریں، صرف اس کو ڈھک دے تو چلے گا؟ یعنی چلے گا بھائی، آپ کو اس کے اوپر نماز وغیرہ پڑھنی نہیں ہے، وہاں پر آپ کو سجدہ نہیں کرنا ہے، تو پھر ظاہر سے بات ہے اس کے اوپر آپ کسی کپڑے کو بچھا دیجئے تاکہ بیٹھنے والے کے کپڑے وغیرہ آلودہ نہ ہو، یا پھر بستر ہے، گدا ہے، اس کے اوپر آپ اچھی طرح کوئی بیڈ شیٹ بچھا دیں کہ پھر نیچے کی جو نجاست ہے اس نجاست کے اثرات آپ کے کپڑے یا بدن پر نہ آئیں، تو ایسی کنڈیشن میں ان کو اگر آپ نہیں دھونا چاہتے تو پھر کوئی میٹر نہیں کرتا ہے۔ سعدیہ کا سوال ہے، کہتی یہ ہے کہ جو لڑکی طلاق ہو کر ماں باپ کے گھر پر چلی آتی ہے، وہ لڑکی اپنے ماں باپ سے زکوٰۃ کے پیسے لے سکتی ہے یا نہیں؟ زکوٰۃ کے پیسے، دیکھیے زکوٰۃ کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کو زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتے، اسی طرح اولاد اپنے ماں باپ کو زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتی، تو پھر ایسی صورت کے اندر کرنا یہ ہے کہ وہ لڑکی اپنے ماں باپ سے زکوٰۃ کے پیسے تو نہ لے، لیکن چونکہ ظاہر سی بات ہے اسی کی کفالت کریں گے، اس کو کھلائیں گے پلائیں گے، تو اپنی جو نارمل کی جو رقم ہے نا، اپنی جو خود کی صاف ستھری والی جو رقم ہے اسی سے ان کی پرورش کرے، زکوٰۃ وغیرہ کی رقم نہیں لے سکتی ہے وہ لڑکی۔ طیب بھائی کہتے ہیں السلام علیکم جی، وعلیکم السلام۔ ظہر عصر کی نماز میں سورہ فاتحہ پوری نہیں پڑھی، پھر امام صاحب رکوع میں چلے گئے تو میں کیا کروں؟ رکوع کروں یا پھر
सूरह फातिहा पढूं। देखिए हनफिया के नज़दीक चाहे नमाज जहरी हो या सिर्री, फजर की नमाज हो, ज़ोहर की हो, असर की हो, मगरिब की, इशा की हो, कोई भी नमाज हो, जब इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं तो फिर जो मुक्तदी होते हैं वो मुक्तदी इमाम के ताबे होते हैं। वहाँ पर उनको सेपरेटली, मुक्तदी को सेपरेटली कोई भी तिलावत करने की इजाज़त नहीं होती है, ना सूरह फातिहा की ना किसी और चीज़ की। तो आपका जो कहना था कि आप रुकू में चले जाएं या सूरह फातिहा पढ़े, तो यही एक बेकार चीज़ है। आपको सूरह फातिहा नहीं पढ़ना है, इमाम साहब के साथ ही तमाम काम आपको करते रहने हैं। एक खातून है, उन्होंने कहा है कि अगर कोई औरत जिस पर गुस्ल फ़र्ज हो जाता है और वो बग़ैर गुस्ल के रोज़ा रख लेती है, रोज़ा रखने के बाद पूरा दिन गुजर भी जाता है, तो क्या उसका रोज़ा सही हो जाएगा? आगे वो कहती हैं कि नमाज न पढ़ने का गुनाह तो उसको होगा, क्या रोज़ा भी नहीं होगा? रोज़ा तो हो जाएगा, ठीक है, रोज़ा न होने की कोई वजह नहीं है, लेकिन जाहिर से बात है किसी भी मोमिन की शान ये नहीं होती है कि वो रोज़ा तो रख रहा है, यानी एक इबादत कर रहा है और दूसरी इबादत को मतलब है कि बर्बाद कर रहा है, ये मोमिन की शान नहीं होती है। नमाज, उसका जो रोज़ा था, रोज़ा बिल्कुल सही हो गया है, इफ्तार भी सही हो जाएगी, सहरी भी सही हो जाएगी, तमाम चीज़ें सही हो गई, लेकिन दिन भर की जो 5 नमाजें उसकी चली जा रही है, इन नमाजों के ख़त्म होने की वजह से या छूट जाने की वजह से वो गुनहगार होगा। अरुषा खान का सलाम है। वालेकुम सलाम। मेरे अंदर सफाई की इतनी ज़्यादा लत पड़ गई है कि क्या बताऊं। जो सामान छूते हैं वो नापाक लगती है, और जो भी पीली चीज़ होती है वो पखाना मालूम होती है, और जो भी चीज़ रेड होती है, जिस पर रेड निशान होता है, तो वो ब्लड नज़र आता है। तो फिर ऐसी सूरत में क्या करें? देखिए ऐसी सूरत में हम तो ये कह सकते हैं कि आपको ऐसा मतलब फालतू का आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं जी ये चीज़ ख़त्म होने वाली नहीं है, मेरे दिमाग के अंदर ही बैठ गई है, तो फिर आपको किसी साइकेट्रिस्ट जो उसके पास से आपको राब्ता कायम करना पड़ेगा। वो जो आपको इलाज तजवीज़ करवाएं, उस इलाज के मुताबिक आपको अपनी जो ज़िंदगी का जो एक पीरियड है ना, उनकी निगरानी के अंदर, उसके इलाज के अंदर आपको गुजारना होगा। वरना फिर जाहिर से बात है, हकीकत आपकी जो बातें हैं जो आपके माइंड और आपके जहन में आती है, इनका हकीकत से कोई राब्ता नहीं है, कोई ताल्लुक़ नहीं है। बेहतर यह है कि आप किसी साइकेट्रिस्ट से राब्ता कायम कर लीजिए, इंशाल्लाह वो आपको सही गाइडेंस करेंगे। एक साहब का सलाम है। वालेकुम अस्सलाम। इनका कहना यह है कि जब भी अल्लाह ताला का नाम लेता हूँ तो फिर अल्लाह ताला का नाम लेते ही मेरे जहन के अंदर एक तस्वीर आ जाती है, माअज़ल्लाह। मुझको पता है कि जो तस्वीर आई है ये अल्लाह की तस्वीर नहीं है, लेकिन एक तस्वीर आ जाती है, तो क्या ऐसी सूरत के अंदर कुफ्र होगा? कुफ्र तो नहीं होगा। देखिए आपके जहन के अंदर अल्लाह का नाम लेते वक्त या नमाज पढ़ते वक्त में या कोई भी इबादत का काम जब आप कर रहे होते हैं, तो ऐसी सूरत के अंदर आपके जहन के अंदर खाका आता है, तस्वीर आती है कि ये गॉड है, ये खुदा है, ये रब है, ये अल्लाह है, तो फिर ये शैतान की तरफ से होती है ना, जबकि अल्लाह ताला की कोई तस्वीर नहीं है, अल्लाह को किसी ने देखा नहीं है। तो फिर ऐसी सूरत के अंदर तो आपको फ़ौरन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लेना है। अल्लाह ताला की जो सूरत है किसी इंसान की जैसी सूरत नहीं है, उसके हाथ पैर हमारे हाथ पैरों की जैसे नहीं है। ये सब शैतान की तरफ से एक बनाया हुआ गेम होता है, जिसको शैतान चाहता है कि वो आपको अपने वंश में करे, अपने कब्जे में करे। उसके बाद में आपको आपकी जो नेकियां है, भलाइयाँ है, नेकियों के रास्ते से आपको हटा दे, नमाजों से और दीगर इबादत से आपको रोकता रहे, ये उसकी कोशिश होती है। तो जब भी ऐसा ख्याल आपके जहन में आता है तो फ़ौरन आपको अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लेना है, शैतान की तरफ धुतकार देना है, और आपके जो भी इबादत वाले काम है उनको कंटिन्यू करना है। ज़हीर भाई ने सलाम पेश किया। वालेकुम सलाम। ज़हीर भाई कहते हैं कि मुफ्ती साहब, हमारे पास बहुत सारे कुरान करीम है, बहुत पुराने हो चुके हैं, जिनमें से कुछ को दीमक लग गई है, कहीं पर पानी लग गया है, तो आप हम क्या करें, उसको जला सकते हैं? देखिए ज़हीर भाई, आप उसको जलाएं नहीं, बेहतर है जला भी सकते हैं लेकिन न जलाएं। बेहतर यह है कि आप वो जो जितने पुराने कागजात हैं उनको उठा लें, किसी अच्छे ने कोई कपड़े वगैरह के अंदर उसको कवर कर ले और उसको अच्छी जगह पर दफन कर दे, जहाँ पर लोगों का गुजर न हो, उसकी बेअदबी ना हो, ऐसी जगह पर उनको दफन कर दें।
कौसर 3 सवाल आते कौसर भाई के। पहला सवाल उनका ये है कि सुबह फजर की नमाज से पहले, जबकि सुबह सादिक हो जाती है, फजर की नमाज अभी तक हमने पढ़ी नहीं है, तहज्जुद पढ़ ली है, लेकिन तहज्जुद के बाद क्या हम अपनी क़ज़ा नमाजें पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हैं कौसर भाई, कोई टेंशन की बात नहीं। जैसे सुबह सादिक हो जाती है, यहाँ पर आप फजर की नमाज भी पढ़ सकते हैं और सुन्नतें पढ़ सकते हैं। उसके बाद में जितनी भी चीज़ें हैं आपकी जो इबादत की, वो सब आप अंजाम दे सकते हैं। क़ज़ा जो नमाज़ें, वो क़ज़ा नमाज़ें भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। दूसरा सवाल आपका है कि फजर की नमाज भी पढ़ ली, फजर की नमाज के बाद क़ज़ा बाकी है कुछ नमाजों की, तो हम पढ़ सकते हैं। फजर की नमाज के बाद भी आप क़ज़ा नमाजें पढ़ सकते हैं। सूरज के तुलू होने के पहले तक का जो वक्त होता है, यहाँ पर आप फजर की नमाजें पढ़ सकते हैं। जो आपके क़ज़ा नमाजें हैं वो भी पढ़ सकते हैं। इसी तरह तीसरा सवाल आपका यह है कि असर की नमाज के बाद भी क़ज़ा पढ़ सकते हैं। असर की नमाज के बाद भी आप क़ज़ा पढ़ सकते हैं। असर की नमाज के बाद में आप क़ज़ा पढ़ सकते हैं, नवाफिल नहीं पढ़ सकते हैं। और क़ज़ा भी आप उस वक्त तक पढ़ सकते हैं जब तक कि वो जो सूरज है, सूरज के अंदर कमज़ोरी नहीं आ जाए, यानी एकदम पीलापन जो होता है वो पीलापन आने के पहले पहले तक आप पढ़ सकते हैं। जब पीलापन आ जाए तो फिर उसके बाद तुम क़ज़ा भी नहीं पढ़ सकते हैं। इकबाल भाई, अच्छा, इकबाल भाई ने दुआ की दरख्वास्त की है। देखिए, इनके घर में तो कुछ प्रॉब्लम है इकबाल भाई। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक तआला आपके घर में और आपके जो कारोबार के सिलसिले में आपने जो बातें लिखी हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, अल्लाह ताला उनको आफ़ियत के साथ ख़त्म फरमाए। इसी तरह आपने अपनी घरवाली के ताल्लुक़ से जो लिखा है कि वो OCD की मरीज़ा हैं, तो हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, शिफा वाली तवील ज़िंदगी नसीब फरमाए। और ये जो खुराफाती जो बातें उनके जहनों के अंदर आती रहती हैं, अल्लाह ताला उनको आफ़ियत के साथ ख़त्म फरमा दे। उसके बाद जो आपने कहा है कि इलाज वगैरह जो कर रहे हैं उसको आप कंटिन्यू रखिए, इलाज करवाते रहिए और अल्लाह ताला से भी दुआएं करते रहिए, इंशाअल्लाह वो मसला क्लियर हो जाएगा। बस इतनी बातें, इनके अलावा और भी जो बहुत सारी बातें इंशाअल्लाह हम एक अगली नशिस्त में, अगली मजलिस में उन तमाम सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। और बहुत सारे जवाब तो हम अपने जो व्हाट्सएप वगैरह के ज़रिए आ जाते हैं या फिर टेलीग्राम के ऊपर भी बहुत सारी लोगों की बातें होती हैं। इसी तरह कमेंट बॉक्स में भी जो आते हैं, आपके जो कमेंट्स आते हैं, उन कमेंट्स के ऊपर भी बहुत सारे जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। दुआओं की दरख्वास्त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।